Assalamu alaikum 6th class. How are you? I hope you will all be fine and enjoying a good health. May Allah bless you all. I am your English teacher from Junior Campus High School, and today we are going to start our online classes. Let's start our lesson and open your books. Go to the page number 12. Page number 12. Today's our topic is conjunctions. In our previous classes, we have already learned about it. We have read it again and again. And so I never think so that today's topic is much difficult. We already know about it. So what is a conjunction? Conjunction is basically our words. Conjunctions are basically words that used to join words जो लफ्ज़ों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉफ़ी और टी, पीटर एंड पाउ। फ्रेजेस को मिलाने के लिए अब फ्रेजेस क्या है? जस्ट लाइक अप द हिल एंड डाउन द डेल, पहाड़ी के ऊपर और घाटी से नीचे। Such a group of words which make a sense but not a complete sense is called phrase. Here I sentence. What is a sentence? Sentence is a group of words which make a complete sense. पूरा जुमला और दो मुख्तलिफ जुमलों को आपस में मिलाने के लिए भी हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज़ लेज़ी बट क्लेवर। यहाँ पर दो करेक्टरिस्टिक्स आ गई उसकी। शी इज़ लेज़ी, वन क्वालिटी इज़ नेगेटिव, बट क्लेवर दूसरी, हम क्लेवरनेस को पॉजिटिविटी में भी ले सकते हैं। एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, तो हम ऐसे लफ्ज़ों को मिलाने के लिए बट का इस्तेमाल करते हैं। I am again describing it that conjunctions are basically words that used to join words, sentences, phrases and clause. Now come to the exercise, page number 13. Underline the conjunctions in the sentences below. दरअसल जुमलों में हमने conjunctions को underline करना है। The first one is they will come if they are free. They will come if they are free. अब यहाँ पर दो जुमले हैं, they will come, they are free. इन दोनों जुमलों को मिलाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं if। ठीक है, if शो करता है कंडीशन को, अगर वो फ्री हुए तो आ जाएंगे। इट्स अ कंडीशन, इफ इज यूज्ड फॉर अ कंडीशन। द सेकेंड सेंटेंस इज, इन आवर सेकेंड सेंटेंस, बिफोर द रेस स्टार्टेड वी वार्म्ड अप। अब इस जुमले में कंजंक्शन क्या है? बिफोर। We simply use before with simple past tense. ठीक है, हम simply इसको past tenses, ये देखें, race started, we warmed up, ये past tense है, simple past indefinite tense। ठीक है, तो इन जुमलों को मिलाने के लिए we simply use before with simple past tense. It suggests that the second event happened soon after the first one. I am giving you another example. Before she left, she gave everyone a present. Is that clear? तो ये before जो है जुमले के शुरू में या दरमियान में, according to condition, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। So what is a conjunction here? Before. The same case is with the third one. After the show was over, we went home.
द शो वॉज ओवर, शो ख़त्म हुआ, वी वेंट होम, हम घर चले गए। तो इनको मिलाने के लिए हमने किसका यूज़ किया? आफ्टर का। तो व्हाट विल बी द कंजंक्शन हियर? आफ्टर। इट इज़ सो हैवी दैट आई कैन नॉट कैरी इट। इट इज़ सो हैवी, एक सेंटेंस हो गया। आई कैन नॉट कैरी इट, मैं इसको नहीं उठा सकती। इन दोनों को मिलाने के लिए हमने इस्तेमाल किया डैट का। सो व्हाट इज़ अ कंजंक्शन हियर? डैट। इट इज़ सो हैवी, ये इतना भारी है, डैट के आई कैन नॉट कैरी इट, मैं इसको नहीं उठा सकती। द नेक्स्ट वन, यू आर सिक, तुम बीमार हो। यू एट टू मच लास्ट नाइट, तुमने कल रात बहुत ज़्यादा खाया था। What is the conjunction here? You are sick because you ate too much last night. यहाँ पर कंजंक्शन है because. Because is used for giving a reason. वो बीमार है, इसके लिए आगे वो reason दे रहे हैं। You ate too much last night. Hope so. Is that clear? Number 6. She was so angry. वो बहुत नाराज थी। That she ran away. के वो भाग गई। और यहाँ पर she was so angry, she ran away। इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाने के लिए हम क्या यूज किया गया? That she was so angry, वो इतना गुस्सा थी, नाराज थी। That she ran away, वो वहाँ से भाग गई। Okay students, now we are going to solve the second part. Fill in the blanks with suitable conjunctions. हमने हर ही जगह को मुनासिब conjunctions लगाकर मुकम्मल करना है। Here is my request कि please keep your writing neat and clean. Your work should be like. Please keep your handwriting neat and clean and listen to me carefully. Okay. हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। He is fat dash lazy। यहाँ पर कौन सा कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे हम? And। अब यहाँ पर दो करेक्टरिस्टिक्स हैं, fat, lazy, because both characteristics are negative, so we join them with and। अगर कोई भी क्वालिटीज़, खुसूसियात, कुछ भी अगर दोनों पॉजिटिव होंगी तो भी एंड से मिलाएंगे, अगर दोनों नेगेटिव होंगी तो भी हम एंड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर एक क्वालिटी पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है तो हम यहाँ पर बट का यूज़ करेंगे। जैसे इसी सेंटेंस को हम चेंज कर लेते हैं, ही इज़ फैट डैश एक्टिव, तो क्या हो जाएगा? मोटी भी है और एक्टिव भी। ही इज़ लेकिन एक्टिव है। ही इज़ फैट बट लेज़ी। चलें जी स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजंक्शंस। हमने ब्लैंक्स को मुनासिब कंजंक्शन लगाते हुए फिल करना है। नंबर 1 है यहाँ पर, ही इज़ फैट डैश लेज़ी। अब यहाँ पर दोनों करेक्टरिस्टिक्स, उसकी दोनों जो क्वालिटीज़ हैं वो नेगेटिव है। करेक्टर फैट भी है, लेज़ी भी है। अगर दोनों क्वालिटीज़ जो हैं वो नेगेटिव होंगी तो भी हम उसको एंड से मिलाएंगे, अगर दोनों पॉजिटिव होंगी तो भी एंड से मिलाएंगे। फैट मोटी है, लेज़ी है, ही इज़ वो मोटा है, लेज़ी है, तो यहाँ पर हम फिल करने के लिए एंड का इस्तेमाल करेंगे। ही इज़ फैट एंड लेज़ी। लेकिन अगर एक क्वालिटी नेगेटिव होती और एक पॉजिटिव होती, जैसे ही इज़ फैट डैश एक्टिव, यहाँ पर एक्टिव होता तो हम उसको बट से मिलाते हैं। ही इज़ फैट बट एक्टिव। होप सो क्लियर। दोनों करेक्टरिस्टिक्स अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो एंड से मिलाते हैं। अगर एक करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो तो हम उसको बट से मिलाएंगे। सेकंड है द बॉय इज़ अनहैप्पी डैश ही हैज़ लॉस्ट हिज पेन। लड़का नाखुश है डैश ही हैज़ लॉस्ट हिज पेन। अब यहाँ पर वो नाखुश क्यों है, रीज़न दे रहा है, तो रीज़न के लिए हम कौन सा कंजंक्शन यूज़ करते हैं? बिकॉज। यहाँ पर हम बिकॉज लगाएंगे। द बॉय इज़ अनहैप्पी बिकॉज ही हैज़
lost his pen. The third one is dash you want to ask a question, you should raise your hand. यहाँ पर हम कंजंक्शन लगाएंगे इफ़ कहाँ पर यूज़ होता है? इफ़ कंडीशन के लिए यूज़ होता है। कंडीशन है यहाँ पर कि अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आपको हाथ खड़ा करना चाहिए। इफ़ कंडीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज़ अ प्लेस डैश आई फाउंड द बॉडी। दिस इज़ अ प्लेस, जगह के लिए हम कंजंक्शन यूज़ करते हैं वेयर। दिस इज़ अ प्लेस वेयर आई फाउंड द बॉडी, ये वो जगह है। यही दिस इज़ द प्लेस, ये वो जगह है वेयर आई फाउंड द बॉडी, जहाँ पर मुझे लाश मिली, बॉडी मिली। नंबर 5 डैश इट इज़ रेनिंग, वी बेटर गो बाय बस। अब यहाँ पर हमने कंजंक्शन एज का इस्तेमाल किया है, एज सजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सजेशन क्या है कि बारिश हो रही है तो बेहतर है हम बस से जाएं, तो यहाँ हमने एज का इस्तेमाल किया। डैश आई वॉज स्लीपिंग, द थीफ केम इनटू द हाउस। डैश आई वॉज स्लीपिंग, व्हेन आई वॉज स्लीपिंग। व्हेन का इस्तेमाल हम टाइम के साथ करते हैं कि जब मैं सो रहा था चोर घर में आया। तो सोते हम कब हैं? ऑब्वियसली रात को ही सोते हैं और चोर रात को ही आते हैं, लेकिन बेसिकली टाइम के लिए व्हेन कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इज़ दैट क्लियर? आई होप सो ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। यूज सुटेबल कंजंक्शन इन कंजंक्शंस टू जॉइन द सेंटेंसेस। जुमलों को मिलाने के लिए अब हमने कंजंक्शंस का इस्तेमाल करना है, मुनासिब कंजंक्शंस का इस्तेमाल करना है। शी इज़ क्लेवर, शी इज़ हार्ड वर्किंग। अब इनको मिलाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे शी इज़ क्लेवर बट हार्ड वर्किंग। चालाक तो वो है लेकिन हार्ड वर्किंग भी है। एक क्वालिटी आ गई पॉजिटिव, एक नेगेटिव आ गई और एक आ गई पॉजिटिव। शी इज़ क्लेवर बट हार्ड वर्किंग। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। मिस्टर ली इज़ ओल्ड, मिस्टर ली इज़ हैंडसम। अब यहाँ पर मिस्टर ली ओल्ड हैं, बूढ़े हैं, मिस्टर ली हैंडसम है। बूढ़े हैं, हैंडसम है, तो ये क्या है? दोनों ऑपोजिट क्वालिटीज़ हैं। तो हम इसको किस कंजंक्शन से मिलाएंगे? बट से। मिस्टर ली इज़ ओल्ड बट हैंडसम। एक क्वालिटी जो है वो नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बुरे होकर भी हैंडसम है। नेक्स्ट वन है यू डू समथिंग यू मस्ट थिंक फर्स्ट। कुछ करने से पहले तुम कुछ करो उससे पहले सोचना चाहिए। तो अब इन दो जुमलों को मिलाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं बिफोर का। बिफोर यू डू समथिंग, कुछ करने से पहले मस्ट थिंक फर्स्ट, पहले ज़रूर सोचो। तो यहाँ हम बिफोर कंजंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिफोर जुमले के शुरू में भी आ जाता है और ये बिफोर जुमले के क्लॉज ख़त्म होने के बाद भी आ सकता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल और बोल देती हूँ, जैसे कि ही वर्क एज एन इंश्योरेंस एजेंट। वो एक इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम करता था बिफोर ही वेंट टू यूएस जाने से पहले। यहाँ पर हम बिफोर को सेंटर में ले आए हैं। मैंने ऊपर वाले टॉपिक में आपको क्लियर किया था कि वी सिंपली यूज़ बिफोर विद सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। इट सजेस्ट दैट द सेकेंड इवेंट हैपेंड सून आफ्टर द फर्स्ट वन। इसमें ये बताया जाता है, ये सजेस्ट किया जाता है कि जो सेकेंड इवेंट है वो फर्स्ट इवेंट के फ़ौरन बाद हुआ है। तो बिफोर को हम क्लॉज के स्टार्ट में भी लगा सकते हैं और क्लॉज ख़त्म होने के बाद सेंटर में भी लगाया जा सकता है। मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी है, होप सो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट है द टीचर हैड करेक्टेड द बुक्स, द टीचर गेव देम आउट। अब ये दो जुमले हैं, इनको मिलाने के लिए भी हम कौन से कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? बिफोर का। किसका इस्तेमाल करेंगे? बिफोर का। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा द टीचर हैड करेक्टेड द बुक्स बिफोर गिव देम आउट। यहाँ पर अब देखें बिफोर सेंटर में आ गया। नेक्स्ट है नंबर 5 शी इज़ सो हैप्पी शी स्टार्ट्स क्राइंग। अब इन दो जुमलों को मिलाना है तो उसके लिए शी इज़ सो हैप्पी, वो इतनी खुश है डैट जब वो खुश शी इज़ सो हैप्पी डैट स्टार्ट्स क्राइंग कि रोना शुरू कर देती है। खुश होती है तो रोना शुरू कर देती है।
इज़ दैट क्लियर? इसको हमने डैट के साथ मिलाया है। होप सो आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा और इसकी घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अपनी हैंड राइटिंग साफ़ सुथरी रखिए और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।